Yeah. So I guess now almost all the students are there, and so we'll be continuing on the topic. Am I audible to everyone? Just say yes to the in the chat. I'll get to know. Yeah. Yes, sir. Okay. So we'll be continuing today, and I hope so that in today's 11 to 12 you have must have learn about the software development life cycle in more details, and also the software testing life cycle. So like this is one of the few concept that you will have to go through like all of the time. Like there are some concept that you cannot get rid of. So SGLC and STLC are such equal concept, and they are so important because like when we were kids, we used to study water cycle, and we have been studying water cycle from first to almost sixth, seventh, and eighth. It's just that it gets more deeper when we go to the higher standards. Similarly, is with the software development lifecycle and SDLC. So it will help you to know how you need to proceed, like what is the main way or main process that you need to follow in order to proceed when you are learning or when you are doing work in your software testing or anything, in whether you are a developer or whether you are a database person, you are a tester, you are a project manager. You need to know about these things. So that is one of the major concepts that we have to go through. And now, while proceeding towards the testing part, I'll be now taking today is the level of testing. What are the major levels of testing that we go through? Basically, there are four levels of testing. It is very similar to what we studied in biology. If you can relate with it, that will be easier for you to understand. When we used to study in biology, we used to study that they are the smallest part, cell, then comes tissues, then organ system. So it was a complete cycle from step to step we used to go. So the same concept is being implemented in software testing, and it will let you know when and what kind of level you are of testing and how many efforts you need to put in. So basis on this level only, you will be able to understand, okay, now this is the time I need to do this kind of testing. I am in this level of testing, whether it is integration or system. So you will be putting all the efforts and all the knowledge of yours while proceeding in that particular level. So the first one is quite simple. It is unit testing, as we have already studied in STLC. So I will be connecting it with the STLC process. So the first testing is the unit testing that we perform, and most of this unit testing part, almost of it is done by the developers. So suppose if there are three developers in the company, first developer is working on login and sign up page, then second developer is working on a dashboard page, and third developer is working on a page where you can add your photos and name and everything, like your profile, like in Facebook you have. So now what will happen when the developer one has created his own module? So he will be testing his own module, he won't be testing any other module in it. So what he's going to do, he will be using some of the technologies or some of the concept which can be utilized to perform this unit testing. That is to test a very small and individual component of the software. Now, taking an example, suppose if I have created a login page. So um, as a developer, now what I will be doing is मैं इतना ही चेक कर सकता हूँ उसमें कि that I will, when I am putting the correct email ID and email address is correct and the password is correct, I should be able to log in. And this will be the my basic criteria of testing when I am testing as a developer in a unit test. So this is what is the basic and the main concept of unit testing. And because we are mostly software tester, so we don't need to be very much indulged in unit testing. We need to just make sure if there is enough time and everything is going in the process, so we should get the software only after the unit testing. हाँ, अब यूनिट टेस्टिंग होने के बाद में ही हमें अगर सॉफ्टवेयर मिले तो उसके फायदे क्या होते हैं कि जब यूनिट टेस्ट हो चुका है तो सारे डेवलपर्स ने अपने अपने कोड को चेक एक बार किया ही होगा। तो उससे चांसेस होते हैं कि जब हमारे पास सॉफ्टवेयर आएगा तो हमें उनको छोटे मोटे इश्यूज नहीं बताने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक डेवलपर ने ये किया कि मैंने उसने मेल आईडी और पासवर्ड डाल के ही चेक नहीं किया,
और उसने बोल दिया कि लॉगिन वर्क कर रहा है, और मैंने जब डाला तो वो एरर आई, तो मतलब वो मेरा एक दिन वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं उसको वापस बताऊंगा कि इसको सही कर, फिर वो बेसिक चीज को वो सही करके मुझे देगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा, तो वो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम सारे डेवलपर्स अपने अपनी यूनिट टेस्टिंग को एक बार एटलीस्ट ढंग से परफॉर्म करें। सो यूनिट टेस्टिंग, इसीलिए हमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक बोला जाता है इसे। व्हाइट बॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें कोडिंग इन्वॉल्व रहती है और इसे मोस्टली डेवलपर्स करते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डाला जाता है। इसके अलावा जो बाकी टेस्टिंग्स हमारी आती हैं, जैसे इंटीग्रेशन और धीरे धीरे सिस्टम और एक्सेप्टेंस, ये सारी टेस्टिंग हमारी ब्लैक बॉक्स में होती है, जो कि एक टेस्टर प्रोवाइड करता है। तो ये मोस्टली इंटरव्यू में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एज अ टेस्टर वेदर यू विल बी डूइंग अ यूनिट टेस्टिंग और नॉट। तो बिल्कुल क्लियर उनको मना करना है कि नो, एज अ टेस्टर आई एम नॉट गोइंग टू डू यूनिट टेस्टिंग, as unit testing is a part of a developer. Now, when we talk about some techniques, so basically there are few techniques which are known. First one is the basis path testing. बेसिस पाथ टेस्टिंग टेक्निक में क्या करता है डेवलपर कि वो अपने एक एक लाइन को, एक एक कोड को एटलीस्ट एक बार तो वो कंपाइल जब करता है तो वो रन करके चेक कर ले कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। जितने भी लाइंस के उसने कोड रन टोटली बनाए हैं, तो वो उनको अगर एक एक बार भी चेक कर लेगा तो इट विल बी श्योर कि एटलीस्ट देर इज नो एनी एरर while रनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, then only he will be proceeding to the next part of it. So that is the main idea of basis path testing. Coming to the control structure testing, तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है कंडीशनल कवरेज और दूसरा होता है लूप कवरेज। कंडीशंस में क्या करता है, सपोज डेवलपर ने कोई कंडीशन लिखी इफ एल्स की, अगर उसने इफ वाला स्टेटमेंट डाला है और इस वाले स्टेटमेंट में ट्रू है, तो वो इफ वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर इफ वाला स्टेटमेंट गलत है तो एल्स के अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो वो बेसिक इतना ही चेक करेगा उसमें कि इफ और एल्स वाली जो कंडीशन है उससे रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। और जब हम लूप की बात करेंगे तो लूप, एज यू ऑल नो, लूप का काम होता है कि जब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता है, जब तक कि उसको एक ट्रू रिजल्ट नहीं मिलता या उसको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, तब तक वो लूप में कंटिन्यूस चलेगा। तो व्हाट अ डेवलपर हैज टू डू इज, उसको बस वो लूप एक बार फाइनलाइज करना है कि हाँ ये लूप फाइनल हुआ, और जैसे ही लूप में उसको रिजल्ट मिला ट्रू, तो वो लूप एंड हो चुका है। तो ये जो बेसिक आइडिया होते हैं, जो कोडिंग करने वाले हमारे डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, ये उनके लिए एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर्स होते हैं, जो कि लाइक दोज हु आर वेरी प्रोफेशनल, दे ऑलवेज परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग एंड दे क्रिएट दोज कोड इन अ वे कि इवन इफ दे आर नॉट अवेलेबल, somebody else can easily conduct the unit testing part on their side. इससे फायदा ये होता है कि एक तो हमारा टाइम बचता है, जब वो टेस्टिंग में हमारे पास चीजें आती हैं तो वो इतनी प्यूरिफाइड होके आती है कि हाँ इसमें कोई छोटे मोटे इश्यूज नहीं है। अब हम अपने खुद के टेस्ट केसेस जो हमने जनरेट किए हैं हम उन्हें रन कर सकते हैं। हमारा जो फोकस रहता है वो बाकी चीजों पे रह के, छोटे इश्यूज पे ना रह करके मेन जो मेजर फंक्शनैलिटीज है उनको चेक करने में चला जाता है। तो ये काफी हमारे लिए यूजफुल रहता है। अब यूनिट टेस्टिंग के बाद जो हमारे लिए यूजफुल टेस्टिंग होती है वो होती है एज अ टेस्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंटीग्रेशन, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन ट्वेल्थ, इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम ऐड करते हैं, जब हम जोड़ते हैं कुछ चीजों को। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक हमारा जो डेवलपर है उसने एक कोड बना दिया, एक लॉगिन का पेज बना दिया। अब जैसे ही वो लॉगिन का पेज बना देता है, सपोज उसने यहाँ पे लॉगिन का हमारा पेज ऐड करके रख दिया है। लॉगिन का पेज कंप्लीट हो गया, लॉगिन जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड के बाद सपोज कीजिए ये कोई ऐसा पेज है जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स को। नाउ दीज आर द फोर मॉड्यूल्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय फोर डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एक डेवलपर में एक ही मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए हमें दो दो डेवलपर की भी जरूरत पड़ती हो। तो अब जैसे ही ये लॉगिन वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, तो इसका जो डेवलपर रहेगा वो अपने यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर देता है, और वो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो भी उसका टास्क रहता है उसको वो
स्टार्ट कर देता है। अब ये जो डैशबोर्ड वाला है, ये डेवलपर ने अपनी यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर दी है। अब इन सब ने अपनी अपनी यूनिट टेस्टिंग तो परफॉर्म कर दी है, बट व्हेन वी वांट टू नो कि हाँ जब मैं लॉगिन कर लूंगा तो लॉगिन करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, इस चीज को मैं कैसे वेरीफाई करूँ। और डैशबोर्ड के बाद में उसके बाद प्रोडक्ट वाले पेज पे जा सकता हूँ कि नहीं जा पा रहा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं पेमेंट करता हूँ और पेमेंट वाले पेज पे जा पाता हूँ या नहीं जा पाता। इन सबको जब हम एक साथ ही सेलेक्ट करके चेक करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो integration is basically when we are testing one or more modules together, when we are integrating them and when we are checking कि एक मॉड्यूल की सक्सेस होने के बाद मैं दूसरे मॉड्यूल पे सक्सेसफुली जाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। तो वो हमारा मेन अप्रोच रहता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल मॉड्यूल जो हमने बोले कि टेस्टेड इन आइसोलेशन, हम पहले एक एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को चेक कर लेते हैं, हाँ लॉगिन वर्क कर रहा है, डैशबोर्ड पे मैं आया तो डैशबोर्ड वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट भी वर्क कर रहा था। अब मैं ये चेक करना, मैं पूरा एक फ्लो चेक करना चाहता हूँ कि मैं लॉगिन करके डैशबोर्ड पे जाऊँ, वहां से प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ और मैं पेमेंट पे जाऊँ, तो मुझे कोई इशू कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को चेक करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हमारी दो मेन अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी बॉटम अप अप्रोच। एक जो है बिग बैंग अप्रोच है जो काफी कम यूज होती है, क्योंकि बहुत ही कम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें मॉड्यूल्स दो या तीन या चार ही मॉड्यूल होते हैं। बाकी जो नए आज के टाइम पे जो मॉड्यूल्स या जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, अगर आप चेक करो तो डिफरेंट डिफरेंट कई ऐसे होते हैं जिसमें हम गूगल मैप्स भी यूज करते हैं, तो वो हम गूगल की एपीआई से कर रहे हैं। और कुछ चीजें होती हैं हम थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को हम जब इंटीग्रेट एक साथ टेस्ट करते हैं एक एक करके, तो वो इंटीग्रेशन के यूज होता है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो दो अप्रोच है, पहली टॉप डाउन और बॉटम अप, इनके लिए हमें स्टब और ड्राइवर का यूज होता है। अब ये स्टब और ड्राइवर कैसे यूज हो सकते हैं, इसको अब हम आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं। स्टब क्या चीज है, इज कॉल्ड बाय द मॉडल अंडर टेस्ट। जो मॉडल हम अभी टेस्ट कर रहे हैं उसको जब किसी चीज की कमी लगती है तो वो स्टब को कॉल करेगा, और जो ड्राइवर होगा वो कॉल करेगा एक मॉड्यूल को। अभी इसको इजीली हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये टॉप डाउन अप्रोच है हमारी, तो ये मॉड्यूल वन है, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। अब ये टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि जब भी हम ये वाली अप्रोच यूज करके हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो हम सबसे पहले मॉड्यूल वन टेस्ट करेंगे, यानी जो सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हमारा रहेगा हम उसे चेक करेंगे। उसके बाद में हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ मॉड्यूल टू की साइड पे। अब इन अ सिचुएशन कई बार ऐसा होता है कि मॉड्यूल वन तो रेडी है बट मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री अभी रेडी नहीं है, और ऑल्सो मॉड्यूल फोर, फाइव एंड सिक्स इज ऑल्सो रेडी। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना रहता है, हमें एक स्टब की हेल्प लेनी पड़ती है। स्टब हमारे लिए क्या करता है, स्टब हमारे लिए एक ऐसा ब्रिज बना देगा जब हम मॉड्यूल वन टेस्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन साइट मैंने टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद में मेरे पास ये प्रोडक्ट का पेमेंट या डैशबोर्ड का पेज अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो एक वर्चुअल में छोटा सा कोड ले लेता हूँ अपने डेवलपर से बोल करके कि जस्ट गिव मी अ सिमिलर कोड कि जो मॉड्यूल टू की तरह ही वर्क करे और मुझे किसी तरीके से मॉड्यूल फोर पे जाने तक मुझे वो बीच में ब्रेक ना हो। तो ये एज अ ब्रिज स्टब मेरे लिए काम करता है। तो ये स्टब जब हम यूज करेंगे तो मैं मॉड्यूल वन चेक कर लूंगा लॉगिन वाला, और ये सपोज कीजिए मैंने पेमेंट वाला भी मॉड्यूल चेक कर लिया। अब जो मेरे पास बचेगा मॉड्यूल, जब ये बन के आ जाएगा तो मैं बाद में इसे भी टेस्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या हेल्पफुल, हमें इससे क्या हेल्प मिलती है कि कल को जब हमारे पास वर्क आएगा तो हमारा वर्क जो है वो डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी। अब ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे पास मॉड्यूल वन भी टेस्ट करना है, टू भी करना है, थ्री भी करना है, फोर भी करना है, फाइव भी करना है। मैं ऑलरेडी जब मेरे पास मॉड्यूल वन आया था और ये फोर फाइव मॉड्यूल है मैं इनको कर चुका हूँ टेस्ट। तो जब मॉड्यूल टू आएगा तो बस मुझे एक साइकिल इसकी रन करनी पड़ेगी कि मॉड्यूल वन से मॉड्यूल टू जा रहा है कि नहीं, और मॉड्यूल टू से मॉड्यूल फोर जा रहा है कि नहीं। अगर ये वर्क करता रहेगा तो मुझे पूरी एग्जिस्टिव टेस्टिंग इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे मेरा टाइम कंज्यूम कम होता है। तो ये हमारा मेजर जो अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, जो मोस्टली यूज हम यही करते हैं। हम जो पहले वाले मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें फर्स्ट टाइम पे बनाने हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम पहले रेडी करते हैं, और बाकी के मॉड्यूल्स जो बाद में यूज होंगे फ्लो के अकॉर्डिंग उन्हें हम बाद में डेवलप करते हैं। जैसे कि पहले हम लॉगिन साइन अप ही बनाएंगे पेज का ताकि हम लॉगिन साइन अप करके आगे जा सकें, और बाकी के पेजेस हम बाद में डेवलप करेंगे, पेमेंट वाले पेज हम सबसे लास्ट में डेवलप करते हैं। तो ये इसमें अप्रोच में हम स्टब को यूज कर रहे हैं। अब सिमिलरली जो इसके अपोजिट अप्रोच होती है उसमें होता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, अब इस केस में हमारे पास में ये वाले मॉड्यूल्स रेडी हैं, अभी मेरे पास पेमेंट वाला मॉड्यूल रेडी है, और मेरे पास ऊपर वाले मॉड्यूल पे मुझे जाना है।
तो मेरे पास वापस से मॉड्यूल 2 जो है वो अभी रेडी नहीं है, वो डैशबोर्ड का है, वो रेडी नहीं है। पेमेंट वाला रेडी है और मॉड्यूल 1 भी रेडी है। तो इस केस में मुझे क्या करना रहेगा कि जो पेमेंट मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक वर्चुअल प्रोडक्ट चाहिए होंगे। बिना मैं प्रोडक्ट के पेमेंट वगैरह नहीं चेक कर सकता। तो इन सिनेरियोज में मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, जो कि ऑलरेडी बनाए हुए रहते हैं, और इन ड्राइवर की हेल्प से मैं अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ टेस्टिंग को। इसके लिए हमें डेवलपर्स की हेल्प लेनी होती है। सपोज करो ये मॉड्यूल 1 रेडी है और मॉड्यूल 4 रेडी है, तो मैं डेवलपर से मॉड्यूल 2 का एक प्रोटोटाइप या एक बेसिक सिनेरियो बनवा लेता हूँ कि हाँ, कुछ जैसे चेक्स और वैलिडेशन उसमें नहीं होंगे। नॉर्मल सिनेरियो में जो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी वो नहीं हो करके वो मुझे डायरेक्ट एक बाईपास बना के दे देता है। तो ताकि मैं इजीली अपने बाकी जो रेडी मॉड्यूल है उनको आराम से टेस्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर आने वाले जो तो मेन कुछ क्राइटेरिया में से एक है टॉप डाउन और एक बॉटम अप। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार ये आएगा। हो सकता है कि आपके डेवलपर ने सारे मॉड्यूल रेडी किए हों और आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना हो, तो उस कंडीशन में हमें कोई इशू नहीं होता। पर अगर किसी कंडीशन में कोई बीच का मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो हमें ये मॉड्यूल्स के लिए हमें स्टब और ड्राइवर का यूज करना रहता है। एंड मोस्ट ये सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टब एंड ड्राइवर, बिकॉज इट इज मोस्टली आस्क्ड by the people who have knowledge of software testing to test you whether you know it or not. So stub is something which is used as to mainly connect with the module under test, and driver is used when the module to be tested has to be connected. तो अभी फॉर एग्जांपल हम इसमें फाइल में लेते हैं, ये हमारा मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 इज देयर एंड मॉड्यूल 3 इज देयर। तो स्टब और ड्राइवर कैसे वर्क करता है इन केसेस में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि स्टब और ड्राइवर से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज ये मॉड्यूल 1 रेडी था, तो जब मॉड्यूल 1 रेडी है तो अब मैं इस मॉड्यूल 2 पे जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मॉड्यूल 2 अभी रेडी नहीं है। तो जैसे ही मैं टॉप डाउन अप्रोच में M1, M2 और M3 में करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो यूज़ करना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं बेसिकली कहता हूँ स्टब। वो मेरे लिए स्टब बन जाता है। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नाउ कॉलिंग मॉड्यूल फ्रॉम पर्टिकुलर टेस्ट मॉड्यूल दैट हैज़ नीड टू बी टेस्टेड। अब जब मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल यानी जो मेरा एक तरीके से वर्चुअल मॉड्यूल है जिसे मैंने बना रखा है, इसको यूज़ करते हुए मुझे M2 से M3 पे जाना है, तो उसके केस में मुझे यूज़ करना पड़ेगा ड्राइवर। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। मेरा M1 रेडी था, जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे तक आने के लिए जो चीज़ यूज़ हुई वो स्टब है, और जब मुझे बॉटम टू अप वापस जाना पड़ रहा है, तो मुझे ड्राइवर की यहाँ पे नीड पड़ती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें यूज करने रहते हैं टेस्टिंग के अंदर। और मेनली इनका यूज अगर आप एज अ कॉन्सेप्ट रहेगा आपकी नॉलेज के लिए मोर इम्पोर्टेंट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट एज योर नॉलेज, बिकॉज इफ यू नोइंग दिस थिंग, अगर कभी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये आपके लिए वहां पे हेल्पफुल रहता है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्टब एंड ड्राइवर। इसके अलावा जो थर्ड अप्रोच है, जो बिग बैंग अप्रोच है, इट इज बेसिकली फॉर स्मॉलर एप्लीकेशन। जो बहुत छोटी एप्लीकेशन होती हैं जिनमें 2 या 3 ही मॉड्यूल होते हैं, ज़्यादा मॉड्यूल नहीं होते। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम सारे तीनों मॉड्यूल को एक साथ बना लेते हैं, और फिर हम उनको एक साथ ही इंटीग्रेट करके उनको ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उन्हीं केसेस में होगा जहाँ पे जो बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, छोटे सॉफ्टवेयर्स होंगे, उनकी सिचुएशन में हम ये यूज़ करते हैं, जो कि बिग बैंग अप्रोच है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 तरह की अप्रोच है। एक है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, और तीसरी है बिग बैंग अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ऐसी अप्रोच जब हमारे मेजर मॉड्यूल्स जो फर्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स हैं वो रेडी रहते हैं, लेकिन बाद के रेडी हम कर रहे होते हैं बाद में। और बॉटम टू अब जाते हैं तो हमारे जो लेटर मॉड्यूल्स हैं वो रेडी हैं, लेकिन जो हमारे आगे आने वाले मॉड्यूल्स हैं जैसे लॉगिन साइन अप अभी रेडी नहीं हुआ है। तो इन केसेस जब लॉगिन साइन अप नहीं रेडी है, तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे जाएंगे? तो उसके लिए डेवलपर आपके लिए एक छोटा सा बाईपास बना के आपको देता है, डायरेक्ट आपको यूआरएल प्रोवाइड करा देता है कि ये आपका डायरेक्ट यूआरएल है, अभी आप इससे एक्सेस कर सकते हो, ये पेज रेडी है। तो दैट इज द मेजर रीजन ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ इंटीग्रेशन. So unit testing has been done, which is mostly done by developer. Then comes the integration. Integration में हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करके वर्क करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि whether they are working fine or not. ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का। Once integration is done, you need to know कि
why is this integration important for us? Now if you can really see this GIF, you will easily get to know. अब इसमें दो गेट हैं, एक ऐसा गेट है जो पहले ओपन हो रहा है और एक गेट है जो बाद में ओपन होना चाहिए। इनको अगर हम सिंक में चेक नहीं, ये इशू यही बता रहा है कि ये सिंक में कभी चेक नहीं हुए। अगर हम इन्हें अलग अलग देखेंगे तो गेट का परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, गेट का मेन काम क्या है कि वो ओपन हो जाए और वो बंद हो जाए। तो वो वाला काम तो ये कर रहे हैं, पर ये वर्क जब ही ढंग से करेगा जब ये दोनों गेट एक साथ ही ओपन होते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। सो दैट इज वाई इंटीग्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम अलग अलग कंपोनेंट को इंडिविजुअल तो टेस्ट कर लेंगे, पर हम जब उनको साथ में रखते हैं तो तब अगर वो वर्क नहीं करे तो वो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो एनर्जी जो हमने अब तक लगाई वो हमारे लिए एक तरह से वेस्टेज हो जाती है। सो दैट इज द मेजर रीजन ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद में हमारे जो सिस्टम टेस्टिंग आती है, वो हमारी ओवरऑल पूरे सिस्टम को हम कैसे टेस्ट करेंगे, वो हमारा मेन फंक्शन रहता है। इसके लिए हमें क्या-क्या मेन जो कुछ हमारे एक्सेप्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो रहती हैं जैसे यूज़र इंटरफेस की टेस्टिंग करना, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद में हमारी फंक्शनल टेस्टिंग जो हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम इनपुट डालते हैं, हम गलत इनपुट डाल के देखते हैं, हम अलग-अलग कंडीशंस प्रोवाइड करके देखते हैं। उसके बाद में हमारी कुछ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। नॉन फंक्शनल मतलब इसमें हम कोई इनपुट नहीं डालते, पर हम इसमें बाकी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। जैसे कि पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, पेज की परफॉर्मेंस कितनी है, अगर वेबसाइट पे एक साथ 1000 लोगों ने लॉगिन कर दिया, तो इसमें क्या इश्यू आ रहा है। कई बार ऐसा होता है जो हमारी एग्ज़ाम रिज़ल्ट की वेबसाइट्स होती हैं, तो जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो जैसे ही रिज़ल्ट अपलोड होता है, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें एक साथ लॉगिन करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को उसमें क्यू में बाद में आंसर मिलता है या फिर कुछ को बोल दिया जाता है कि यू नीड टू वेट टू गेट योर रिज़ल्ट। सो इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं, ये इसी परफ़ॉर्मेंस और वेदर स्ट्रेस इज़ देयर मोर, लोड टेस्टिंग, इस तरह की टेस्टिंग ना परफ़ॉर्म होने की वज़ह से होते हैं। तो जो सिस्टम में हमारी टेस्टिंग होती है, उसमें हम स्पेसिफिकली ये चेक करते हैं कि हमें क्लाइंट ने जो बताया था, उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं। अगर मुझे क्लाइंट ने बोला है कि वो एज़ अ यूज़र लॉगिन करके प्रोडक्ट परचेज़ करके और पेमेंट करके सक्सेसफुल चले जाना चाहिए, तो मुझे पूरे इस प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा कि जब मैं लॉगिन करता हूँ, तो मुझे कोई इश्यू आ रहा है या नहीं? जब मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो वो प्रोडक्ट सही से मैं सेलेक्ट कर पा रहा था कि नहीं? उसकी प्राइसिंग वेदर प्राइसिंग वाज़ करेक्ट और नॉट? जब मैं उसमें डिस्काउंट लगाता हूँ या कूपन कोड लगाता हूँ, तो वो कूपन कोड के अकॉर्डिंग उसमें करेक्टली उसके प्राइस को कम कर रहा है या नहीं? जब मैं उसमें पेमेंट करता हूँ, तो वो प्रॉपर्ली पूरा पेमेंट गेटवे वर्क करता है, एपीआई सक्सेसफुली उसकी आती है या नहीं? और पेमेंट सक्सेस होने के बाद में मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं या मेल आ रहे हैं या कन्फर्मेशन पहुँचता है कि नहीं? तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है जो मुझे चेक करना रहेगा एज़ अ फंक्शनैलिटी वाइज़ कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए बना था या जो एप्लीकेशन जिस भी मेन फंक्शन के लिए बनाई गई थी, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है या नहीं? अब जो हमारा जीयूआई है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसके लिए मैं थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जिससे आपको ईज़िली समझ में आएगा। Let me know if the screen is visible or not. Just tell me in the chat. Yes, sir. Okay. Okay. So now we'll be going to website. जैसे this is the website Narayan Health. This is an Indian website. So basically अभी जो मेरा ब्राउज़र ओपन है वो है क्रोम ब्राउज़र, जो अभी आपको विजिबल है। नाउ कैन इजीली सी अगर मेरे को इसमें यूआई चेक करना रहता है, तो देयर आर सम टूल्स व्हिच आई बेसिकली यूज। मेरे पास क्या रहता है, ग्राफिक्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहते हैं, जो मेरी डिजाइन टीम रहती है वो मुझे बताती है कि ये जो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ये जो फॉन्ट योर सेफ्टी आवर प्रायोरिटी आ रहा है, तो ये फॉन्ट साइज कितना होगा। तो मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ कि हाँ, वेदर द दिस पर्टिकुलर फॉन्ट इज करेक्ट और नॉट। फॉन्ट फैमिली अगर उन्होंने मुझे बताई है, फॉन्ट साइज अगर उन्होंने 14 बताया है, तो मैं उसको उससे कंपेयर करके चेक करूंगा कि या दिस पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग इन द सेम फॉन्ट साइज और नॉट। सो दिस कम्स वन ऑफ द few मॉड्यूल्स ऑफ यूजर इंटरफेस, जब हम यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। अगर अभी आपको इसमें कोई इशू मिल रहा है, तो वो किस बेसिस पे आ रहा है या वो इशू किस तरीके का है वो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही है अभी इस पे। अभी मैं सेम वेबसाइट को ओपन करता हूँ, सपोज आई आई ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, ऑल्दो आई ब्राउजर अब नहीं रहा बेचारा, स्टिल। So now you will see that there will be some component which are not working properly on the I browser. Can you see this? Let if anybody can just tell me कि
ये जो अभी क्रोम में मैंने ओपन किया है और उसके बाद मैं आई में ओपन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पेज पे मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है अगर Yes, किसी sir. को? We can see the difference. The tiles are not coming on the other browser. या one more thing is there, you can just see this WhatsApp icon or this mobile icon. You can see uh, in IE browser the currently is Microsoft Edge browser is open. तो ये जो आइकन है वो काफी बड़ा आ रहा है। ये आइकन अगर आप ब्राउजर इस पे चेक करेंगे क्रोम पे तो ये काफी छोटा है। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जिनको हमें चेक करना रहता है एज अ यूआई। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूआई चेक करते हैं, यूआई का मतलब होता है कि बेसिक कैसी वो एप्लीकेशन दिखती है। तो एक एप्लीकेशन के ऑलमोस्ट दो एंड होते हैं। आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, अगर आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज की है जिसमें बैक एंड अलग होता है और फ्रंट एंड अलग होता है, तो जब भी हमें यूआई टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो हमारा सारा फोकस इसके यूआई पे रहता है। उसके लिए भी हमारे पास कुछ टूल्स रहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास सी एस एस व्यूअर एक टूल रहता है। अब जैसे ये टूल है, अब मैं जैसे ही इसे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन उस टेक्स्ट की ये दे देता है। सपोज उसका फॉन्ट साइज कितना है, लाइन हाइट मेरे को कितनी रखनी है। क्योंकि किसी किसी केसेस में हमें जो क्लाइंट होता है वो बिल्कुल एक मतलब 1 पिक्सल टू 2 पिक्सल का डिफरेंस भी वो मतलब अलाउ नहीं करते हैं। तो उन सिनेरियोज में हमें इस तरह के टूल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। हमें इनके बीच ये एक से दूसरे सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है ये सही है कि नहीं, इसके भी हमें चेक करने के लिए यूज हम टूल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये रूलर एक टूल है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये अराउंड इसकी हाइट 65 आ रही है। तो अब अगर मेरे जो ग्राफिक्स में ये 60 हाइट रहेगी तो मुझे ये इशू डालना पड़ेगा, चाहे भले ही ये सिर्फ 5 पिक्सल की हाइट का डिफरेंस है। और मतलब ये बहुत कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर आप 5 पिक्सल में इसमें ऐड भी कर दूंगा तो 5 पिक्सल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। पर बिकॉज ऑफ द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन दिस इज व्हाट द 5 पिक्सल विल definitely look like. But because of the client specification we have to perform these few things. तो ये जो सारे चीजें हमारी चेक करनी है, वेदर इट इज फॉन्ट, वेदर इट इज एन इमेज। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एज ब्राउजर यू कैन सी देयर विल नॉट बी एनी इमेज एज वेल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लाइक सपोज ये ड्रॉप डाउन है। अगर आप ये ड्रॉप डाउन देखेंगे तो अभी मैं जैसे ही 500 डॉक्टर पे होवर करता हूँ तो मुझे तीनों ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं। ये करेंटली मैं क्रोम पे चेक कर रहा हूँ। अब मैं एज पे जाता हूँ तो आप ये देखिए, मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो उसके ऑप्शंस आ ही नहीं रहे, बल्कि उसके ऑप्शंस कहाँ आ रहे हैं, ये साइड में अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा स्क्रोलर आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो नाउ दिस इज अ UI issue which needs to be fixed if the client has demanded for it. So definitely there will always be an UI issues when it comes to testing on different browser. अगर हम अलग अलग ब्राउजर को यूज करते हुए टेस्ट करते हैं तो इस तरह के नॉर्मल इश्यूज आते हैं हमारे पास में। तो ये हमारे UI स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जिनमें कभी इमेजेस अपलोड नहीं होती हैं, या फॉन्ट साइज या फॉन्ट का जो कलर है वो सही नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो हाइड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज है। Let me just go inside this particular thing. Now if you can see, this is the Chrome browser for the same page, and this is a browser which is, I think this is Edge browser. So in some cases you can find this kind of element when a particular image is not uploading, or a particular image is not coming on the website. So this is one of the few test scenarios or test cases that you need to run when you are checking for the UI part of that particular application. Now moving to the functional part of any application. Functionally, you have to test like what are the major functional part of it. Let's meet मैं एक बैंक डेमो की एप्लीकेशन लेता हूँ, whether it is okay. So now this is a bank demo. It's a demo application. So what I will be doing is now I will try to sign up here. So basic functional testing अगर मैं start करता हूँ, suppose this is a sign up page for a demo application. तो मैंने ये अपना टाइटल सेलेक्ट किया, मैंने अपना नाम इसमें डाला, लास्ट नेम। नाउ डेट ऑफ बर्थ, इफ आई ट्राई टू पुट सम इनवैलिड काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, उसने मुझे बताया हुआ है कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है, बट स्टिल आई एम
deliberately putting some invalid format. Here is an format for the social security number. So what I will be doing is I will be using invalid format. Let me take a mail ID. Now most of the things that I have mostly entered in this particular fields are not proper and valid. So it will not allow me to proceed until and unless I am going to match the requested format. So here is the error message as well. So this is the way how I am going to test an application, whether it is working properly or not. Let me just continue with the same password. Let me say void. Now there is one particular error message for this password as well. So वो password में क्या बोल रहा है मुझे कि whenever I am creating an account, I need to use some specific standards. उसमें मुझे एक छोटा नंबर, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर लेना है, और एटलीस्ट जो मेरा पासवर्ड है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 की होनी चाहिए. तो ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अभी करंटली, जो भी मैं चीजें चेक करता हूँ, ये सारी मेरी आती हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर, जिसमें मैं मैनुअली इसमें डेटा डालता हूँ. अब मैं इसमें चेक करता हूँ कि वेदर इट इज लेटिंग मी प्रोसीड और नॉट. तो इसने मुझे प्रोसीड करने दिया. नाउ अगेन इट विल बी आस्किंग फॉर मी टू. Now I've just signed up on this particular application and now I will try to log in with the same credential जो मैंने अभी फिल किया है. अगर मैं थोड़े से भी क्रेडेंशियल में कुछ भी गलत डालता हूँ तो वो इट विल गिव मी एन एरर मैसेज. नाउ सपोज दिस इज इन अ पर्टिकुलर बैंक डेमो एप्लीकेशन. तो ये जो डेमो एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रही है, ये पूरा उसका बैक एंड है, ये उसका फ्रंट एंड नहीं है. जैसे आप कोई भी बैंक कोई भी एप्लीकेशन ऐसी चलाते हो जिसमें बैक एंड होता है, आप अगर ब्लॉग लिखते हैं तो उसका बैक एंड अलग होता है और फ्रंट एंड अलग होता है. ऐसी फेसबुक पे भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं. जैसे अगर फेसबुक का अगर आपने बिजनेस अकाउंट देखा है तो उसका बैक एंड अलग होगा और फ्रंट एंड अलग होता है. तो सिमिलरली ये इसका बैकएंड है. अब मैं बैकएंड के अंदर जब मैं आता हूँ तो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है फंक्शनल टेस्टिंग करना. अभी यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ये चेक करूँ कि इसका फॉन्ट सही है कि नहीं, तो वो इतना यूजफुल नहीं रहता मेरे लिए. तो यू नीड टू डिसाइड व्हेन यू हैव टू डू द यूआई टेस्टिंग. और यूआई कहाँ इंपॉर्टेंट रहता है? यूआई हमारा रहता है इंपॉर्टेंट फ्रंट एंड पे. जो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है, फ्रंट पेज होता है, जिसे हम मोबाइल में भी चलाते हैं. तो ये चीजें जो हमें हैं, ये हमें डिसाइड करनी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग वी आर करेंटली परफॉर्मिंग. सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ यूआई टेस्टिंग, योर फोकस विल बी मोर ऑन द फॉन्ट, ऑन द इमेज, वो कलर सही आ रहा है या उनका अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, वो मोबाइल पे सही वर्क कर रहा है, वो टैबलेट व्यू में सही व्यू करने पे आ रहा है कि नहीं. सो दैट विल बी योर मेन कॉन्सेप्ट. On functional testing, when you are doing it, your focus will be on putting some valid value, some invalid value, कुछ गलत डाल के उसमें आप चेक करो. कई बार ऐसा हो सकता है कि एरर मैसेज नहीं आ रहा, तो आप बताओगे अपने डेवलपर्स को कि देर इज नो एनी एरर मैसेज. और अगर जैसे अभी पासवर्ड फील्ड में वो एरर मैसेज में ये नहीं लिखता मुझे कि आपको एक लोअर केस लेटर डालना है, एक अपर केस लेटर डालना है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि फॉर्मेट क्या है. तो एरर मैसेज को भी डिजाइन कराना हमारा काम होता है. तो वो सब करने के लिए हमें फंक्शनल टेस्टिंग करनी पड़ती है. जो फंक्शनल टेस्टिंग के बाद में हमारी आती है, जो नेक्स्ट टेस्टिंग रहती है, वो रहती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. इसमें हमारा मेन फोकस किस में रहता है कि पेज लोड का टाइम क्या है. और जब भी हमारा कोई पेज लोड हो रहा है तो उसमें कितना लेटेंसी टाइम रहता है. अगर आप कभी भी गूगल से कंपेयर करोगे तो देर इज जीटी मैट्रिक्स, एक साइट होती है जो वेबसाइट को कंपेयर करती है कि उसको पेज लोड होने में कितना टाइम लगता है, और उस बेसिस पे ही हमारी गूगल रैंकिंग होती है. तो देर आर सम स्टैंडर्ड्स दैट आर वी फॉलो. तो हमें लगता है कि पेज लोड से क्या फर्क पड़ता है. पेज लोड, जब भी आप कोई वेबसाइट ऐसी बनाते हो जिसकी पेज लोडिंग की कैपेसिटी काफी कम है, तो उस पेज को अगर लोड होने में काफी टाइम लग रहा है तो वो रैंकिंग
उसकी इम्प्रूव नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट डालता हूँ, सपोज मैं यही वेबसाइट डालता हूँ, तो ये जो हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, ये जो टूल्स रहते हैं, ये हमें बताते हैं कि अभी जो आपने, जो भी आपकी वेबसाइट है, वो उसका पेज लोडिंग क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम फिक्स कर देंगे तो पेज लोड का टाइम बढ़ जाएगा। अगर पेज लोड का टाइम बढ़ जाएगा तो ही आपकी जो रैंकिंग रहेगी गूगल पे, जब भी आप कोई सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पे IIT JEE कोर्सेस, तो अब ये जो यहाँ पे जो गूगल पे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, ये इतने सारे जो ऐड आने के बाद में, इनकी जो रैंकिंग रहती है, जैसे बायजूस की रैंकिंग यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि अगर मैं बायजूस की एप्लीकेशन पे जाके चेक करूंगा तो उसका पेज लोड टाइम देखो आप, उसका पेज लोड जैसे ही मैं आया सारा पेज ऑलरेडी लोडेड है। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे गूगल रैंकिंग प्रोवाइड कराता है कि आपका पेज लोड टाइम कितना है, आपका जो पेज पे कंटेंट है वो कैसा है। सो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस या फिर सिर्फ किसी को ऐसा बताना कि हाँ इसमें कोई एरर नहीं है, हाँ ठीक है हमने पेज लोड करवा दिया है, दैट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, योर पेज लोड टाइम इज ऑल्सो इफेक्टिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप वेबसाइट का भी ओपन करते हो कोई भी, और अगर वो 9 से 10 सेकंड में या 15 सेकंड में वो वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो देर आर 99.9% चांस कि आप वो वेबसाइट को ओपन नहीं करोगे, आप उस वेबसाइट से हट जाओगे या आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे जो भी चीज़ आपको अभी चाहिए। So that is one of the major reason. Abhi I've just used this particular website for example. So now it will be fetching all the information for this website and it will tell me what are the major reason that why this page is loading slow, and जो इमेजेस इस पेज पे हैं क्या मैं उस इमेजेस को मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करके उनको छोटा कर सकता हूँ, उनका साइज छोटा कर सकता हूँ, तो वो मुझे बता देगा। नाउ दिस इज द रिजल्ट विच हैज जस्ट कम। जो उसने मुझे पेज का स्कोर दिया है वो दिया है 50%। Now 54% is not a very good score, and also here it is giving me D. So mostly हमें B या B और A. A is very it's very difficult to get A, but still most of the top websites are going in the B. जो उसका फुल लोड टाइम है वो है 11 सेकेंड, और बाकी जो अगर आप इसमें देखेंगे कि एवरेज फुल पेज को लोड होने का जो टाइम होता है वो 8 सेकेंड्स होता है, यानी मोस्टली जो पेजेस होते हैं यहाँ इंटरनेट पे वो आराम से 8 सेकेंड के अंदर लोड हो जाने चाहिए। अब वो मुझे यहाँ पे सारी चीजें बताएगा, वो ऑप्टिमाइज इमेजेस का मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये सारी इमेजेस हैं आपकी। जैसे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ये एक इमेज आई, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ये एक इमेज आई, ये सारी ऐसी इमेजेस हैं जिसको वो कह रहा है कि यू नीड टू ऑप्टिमाइज दिस। इन इमेजेस का आपको साइज कम करना पड़ेगा, तो आपकी जो पेज की स्पीड है वो बढ़ जाती है। सो इन मेनी सिनेरियोज एज अ टेस्टर यू नीड टू टेल कि हाँ जो टेस्ट आप वेबसाइट टेस्ट कर रहे हो, तो उस टेस्टिंग वेबसाइट पे क्या परफॉर्मेंस है, वो कितनी अच्छी अभी वर्क कर रही है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लेट लोड होने में। तो दीज आर द बेसिक टूल्स विच यू नीड टू यूज। अब लोड टेस्टिंग, बेसिकली लोड टेस्टिंग में हम क्या चेक करते हैं, अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अगर एक ही टाइम पे काफी सारे यूजर्स एक साथ आते हैं, तो उस सिनेरियो में वो वेबसाइट कैसे बिहेव करती है, क्या वो वेबसाइट एरर फेंकती है, या क्या वो वेबसाइट लोड होना बंद हो जाती है, वो क्रैश कर जाती है, उसका डेटाबेस क्या होता है। तो उन सारी चीजों को हमें टेस्ट जब हम करना होता है तो वो हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, और ये लोड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हमें अलग अलग टूल्स यूज करने पड़ते हैं। इस ऐसे टूल्स होते हैं हमारे पास में जो टूल्स हमें हेल्प करते हैं एक तरीके का वर्चुअल यूजर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लोड टेस्टिंग, देर इज वन टूल विच इज नोन एज JMeter। ये टूल हमारे लिए क्या करता है, ये टूल हमें एक वर्चुअल यूजर बना देगा। एक थ्रेड हमें बनानी होती है इसके अंदर, उस थ्रेड पे हम फिक्स कर देते हैं कि ऑन अ टाइम इन एवरी 5 सेकेंड देर विल बी 10 यूजर्स हु विल बी हिटिंग ऑन अ वेबसाइट। तो जैसे ही मैं ये कोड पूरा अपना इसमें लिख देता हूँ तो ये कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने लग जाता है, और हर 5 सेकंड के अंदर 10 10 यूजर उसमें ऐड होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाते हैं। और ये उस पर्टिकुलर चीज का हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। रिजल्ट में हमें बताता है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर साइज। क्या हुआ था कि when 100 users were working on the particular same thing on the same time. So these are the basic things which we will be using in the non-functional testing, and they do have a lot of scope as well. So after this we'll be discussing about the usability. And now what is usability? Usability is basically there is no any such tools for usability.
यूजेबिलिटी का इजीली मतलब सिर्फ इतना है कि या दिस पर्टिकुलर साइट शुड बी इजीली सक्सेसफुल। अब अगर सपोज करो, अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज कर रहे हो जिसमें लॉगिन का पेज है और लॉगिन का टेक्स्ट भी वाइट में लिखा है और लॉगिन के बटन का भी जो फॉन्ट है वो वाइट है, अगर दोनों ही वाइट पे लिखा रहेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट इजीली सी दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। अभी वहां पे कोई इशू, ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो वो वर्क करेगा, पर जो टेक्स्ट वहां पे लिखा था उसका कलर वाइट होने की वजह से you are not able to identify whether what is written over there. तो these are the very small and basic things which happens most of the time। जो डिजाइनर रहते हैं, जो कभी फाइल अपलोड करते हैं, जब भी हमारी फाइल एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाती है, तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसमें उन्होंने हार्ड कोडिंग की होती है, वो उन्होंने कुछ हॉट फिक्स किए होते हैं, तो वो फाइल हमारी ऊपर ना जा करके, वो इशू इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो नहीं था। जब मैंने वो इशू चेक किया और मैंने इशू डाला तो वो ऐसा ही वर्क कर रहा था, पर जब सेम चीज हमने अपने दूसरे सर्वर, लाइव सर्वर पे डाली, तो वहां पे वो इशू आया। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच यू नीड टू डू व्हाइल यू आर यूजिंग द यूजिबिलिटी टेस्टिंग एज वेल। तो इसमें अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे से जरूर पूछो, क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग इज वन ऑफ द लाइक वेरी कोर टेस्टिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। एज अ टेस्टर आपको यही मिलेगा, आपको यूआई चेक करना होगा, आपको फंक्शनल इनपुट डाल के चेक करने होंगे, पेज लोड उसका चेक करना होगा कितने देर में लोड होता है, और लोड टेस्टिंग के लिए आपको टूल यूज करने पड़ सकते हैं, परफॉर्मेंस उसकी जब चेक करनी होती है, यूजेबिलिटी देखनी होती है कि हाँ एक बार पे क्लिक होने पे आ रहा है कि नहीं, आप कभी किसी की एलिमेंट पे होवर करते हो तो उसमें टूल टिप आता है कि नहीं लिखा हुआ। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट रहती हैं। अब सिस्टम टेस्टिंग तक किसी को कोई इशू है तो मुझे प्लीज अभी पूछ लीजिए आप, फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा मैं वहाँ कंटिन्यू करूंगा। जस्ट से यस और नो इन द चैट इटसेल्फ, एनीबडी, इवन अ सिंगल पर्सन इफ सेज नो, आई जस्ट कंटिन्यू। ओके ओके ओके। सो ओके, so now we'll be just getting to know how system testing work। तो सपोज अगर आपको बोल दिया कि या यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, नाउ नीड टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, तो आपके लिए उसके लिए एक टेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा। हाउ यू विल बी गोइंग टू क्रिएट अ टेस्ट प्लान, यू विल बी जस्ट गेटिंग टू नो इन अपकमिंग क्लासेस। उसके लिए हम आपको एग्जांपल वगैरह के साथ समझाएंगे। क्रिएट सिस्टम टेस्ट केसेस एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स, उसके लिए आपको टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं उसके उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद में आपको कैसा टेस्ट डेटा चाहिए, टेस्ट डेटा फॉर एग्जांपल सपोज करो कि उसमें एक अपलोड बटन है एक एप्लीकेशन के अंदर, और वहां पे जैसे प्रोफाइल आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल इमेज आप अपलोड करते हो तो एक अपलोड बटन है। तो अब अगर आपको टेस्टिंग करनी है उसकी, तो आपके पास टेस्ट डेटा के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इमेजेस होनी चाहिए अलग अलग फॉर्मेट की। आपके पास जेपीईजी फॉर्मेट की इमेज होनी चाहिए, टीआईएफ की होनी चाहिए, पीएनजी की होनी चाहिए, जीआईएफ आप अपलोड करके देखोगे। तो आप अलग अलग इमेजेस जब आप अपलोड करोगे उस पर्टिकुलर चीज पे, तो हो सकता है कि कुछ इमेजेस को वो मना कर देगा। तो इस तरह के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, आपको अलग अलग बहुत सारे ईमेल आईडी आपको हो सकता है कलेक्ट करनी पड़े, आपको इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड पासवर्ड्स बनाने रहते हैं। तो आप इन सारी चीजों को टेस्ट डेटा हम मानते हैं, और टेस्ट डेटा कलेक्ट करना पड़ता है जो हमारी टेस्टिंग में काम आता है। उसके बाद में हम अपने टेस्ट केसेस रन करना चालू करते हैं एक के बाद एक, और उसके टेस्ट केसेस के आगे हम लिखते जाते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस हैज पास्ड और फेल्ड। उसके बाद अगर हमें कोई इशू मिलता है तो हमारी जो भी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं जिसमें हम रिपोर्ट करते हैं बग्स को, वेदर इट इज Atlassian Jira और Bugzilla, देयर आर मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। तो हम वो इशू बता देंगे अपने डेवलपर्स को, रिपोर्ट कर देंगे, हम उसमें स्टेप्स लिखते हैं और वो इमेज लगाते हैं, एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि हाँ दिस इज पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वर्किंग। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वो इशू फिक्स होके हमारे पास वापस आता है, तो हम उसे रीटेस्ट करते हैं बग को कि या नाउ दिस पर्टिकुलर इशू इज फिक्स्ड। once this particular thing has been done, you need to process for the regression testing। regression testing क्या होता है, सपोज आपने लॉगिन साइन अप सब चेक कर लिया, आपने 10 दिन पहले लॉगिन साइन अप चेक कर लिया था और आपने अपडेट कर दिए थे अपने टेस्ट केसेस, और सारे टेस्ट केसेस आपके पास हो गए। अब क्या हुआ कि कोई और इशू ऐसा था जिसकी वजह से लॉगिन साइन अप पे कुछ इफेक्ट आ गया। नाउ अब आपने तो लॉगिन साइन अप ऑलरेडी चेक कर लिया था, तो आपके लिए तो वो ऑलरेडी वर्किंग फाइन। बट नाउ इफ व्हेनेवर अ कोड इज गोइंग ऑन लाइव, जब भी कोड लाइव जा रहा होता है, तो हम एक लास्ट टाइम पे सारे रेग्रेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई नया चेंज होता है और हमें मालूम है कि हाँ हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से मेरा लॉगिन साइन अप भी बिगड़ा है, तो हम एक बार दोबारा से रेग्रेशन करते हैं उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉड्यूल का। हम सारी चीजें नहीं टेस्ट करके, सिर्फ हम डेवलपर से पूछ लेते हैं कि हाँ दिस इज द वन थिंग जिसे हमें चेंज किया है और इसका इफेक्ट इन 3 जगह पे आएगा।
तो हम उन 3 जगह को एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, उसे हम रिग्रेशन कहते हैं। रिपीटिशन करते हैं हम अपनी टेस्टिंग साइकिल की, हमारी जो भी टेस्टिंग साइकिल उसमें स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग रहती है, और फिर हम फाइनली अपना साइन ऑफ देते हैं कि या नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन टेस्टेड बाय द टेस्टिंग टीम। अब हमसे जब साइन ऑफ हो चुका है, तो जो लास्ट स्टेज होती है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में, वो होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ सपोज आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, या फिर आप एक खुद क्लाइंट है, आपको एक वेबसाइट बनवानी है। तो फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे कि एक टीसीएस कंपनी है और एक ब्लू डार्ट हमारी कंपनी है जो कि पार्सल वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो ब्लू डार्ट जो कंपनी है उसने टीसीएस कंपनी को अपना वर्क दिया था, और उन्होंने टीसीएस से बोला था कि मुझे ऐसी सी एक एप्लीकेशन चाहिए जिससे मैं अपने पार्सल्स को ऑनलाइन ट्रैक कर सकूं। सो नाउ व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय टीसीएस, तो टीसीएस के एम्प्लॉयज तो उसको टेस्ट करेंगे ही, पर जब वो लोग टेस्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आगे भेजते हैं, तो नाउ इट्स द इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लू डार्ट कि वो भी चेक करे कि हाँ ये एप्लीकेशन जैसा हमने कहा था वैसा वर्क कर रही है कि नहीं। क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बार जरूर चेक करेंगे कि वेदर द पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब वही है, वो एक्सेप्ट करना उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जब वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो मेनली इसमें भी हम फंक्शनल सारी चीजें टेस्ट करते हैं। जो ब्लू डॉट के काम करने वाले जो लोग रहेंगे, जो एम्प्लॉय रहेंगे, उनके दिमाग में ज्यादा सिनेरियो रहते हैं एज कम्पेयर टू टीसीएस। अब टीसीएस में अगर मैं काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो मुझे तो नहीं आइडिया कि ब्लू डॉट कैसे काम करता है, मैं तो सिर्फ जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करूंगा। पर जो ब्लू डॉट में खुद काम करता है, जो 15 साल या 20 साल से ब्लू डॉट में पार्सल का काम कर रहा है, जब वो एप्लीकेशन को यूज करेगा तो उसके सिनेरियोज अलग होते हैं। वो अलग तरीके से सोचता है और वो उसी अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग भी परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है, अब जब यूएटी में कुछ वो लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो कई बार हमें इश्यूज ना बता करके, हो सकता है कि कोई इशू ना मिले, पर उन्हें लगता है कि यार ये जो कलर तुमने बटन का ब्लू किया हुआ है, आई थिंक इट शुड बी रेड। तो इस तरह के उनके जो फीडबैक्स होते हैं वो हमारे पास आ जाएं, ताकि टाइम रहते और हम उन फीडबैक्स को इजीली इंप्लीमेंट करते हैं, इससे पहले कि वो सॉफ्टवेयर हम नॉर्मल पब्लिक के लिए लाइव करते हैं। तो दैट इज द मेजर यूज ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं कि जो बिजनेस हमारा रूल था, जो बिजनेस केस था, वो ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर वो सारी चीजें सही से वर्क करती हैं, हो सकता है हम उसमें कुछ चेंजेस करवाते हैं, तो उसको हम चेंज रिक्वेस्ट भेजते हैं डेवलपर के पास में, वो डेवलपर चेंज करता है, फिर वो टीसीएस में बैठा हुआ टेस्टर करेगा चेक, उसके बाद वो वापस से एक्सेप्टेंस के लिए भेज देगा। हो सकता है कुछ इनहेंसमेंट हो, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीजें, जितने भी वर्क हमें उसमें करना होता है हम वो कर लेते हैं। इस टेस्टिंग के बाद में कोई उसमें वर्क एक्स्ट्रा नहीं होता। अब जब उन्होंने फाइनली हमें रिलीज कर दिया होता है कि हाँ नाउ दिस इज फाइन फॉर मी, तो ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर अब प्रोडक्शन या लाइव होने जाता है फॉर अ नॉर्मल कस्टमर। सो दैट इज द मेजर लास्ट फाइनल part of a testing that has to be done by the people who are working as a client, as a BA, और इवन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और हायर जो हमारी पोस्ट पे जो लोग रहते हैं, वो भी एक बार यूएटी परफॉर्म करते हैं। इसमें भी अल्फा और बीटा दो तरह की टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग, अल्फा का मतलब वो टेस्टिंग जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सपोज अगर मेरे टीसीएस में मैंने टेस्टिंग कर ली है, तो मेरे जो सीनियर्स हैं एक बार वो भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को पूरा चेक करते हैं कि हाँ ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। बीटा टेस्टिंग क्या रहेगी, बीटा टेस्टिंग यानी कि जब वो सॉफ्टवेयर टीसीएस से वापस से ब्लू डार्ट के पास चला गया, तो उसके बाद वो लोग रिलीज करते हैं उसका बीटा वर्जन, और वो अपने छोटे कुछ, जैसे 1,000 या 2,000 जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, जो उनके काफी सालों से साथ में हैं, वो अपना रिलीज देते हैं और बोलते हैं कि आप प्लीज चेक कीजिए वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम और इट, और हम अगर कोई इशू है तो उसको वेरीफाई करेंगे। वंस दैट इज ऑल्सो डन, तो वो पूरी कंप्लीट वर्ल्ड के लिए वो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ना आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ द टेस्टिंग पार्ट। इज देयर एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन टिल नाउ? बिकॉज इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं आपको एक पेज दिखाऊंगा सबको, एंड यू गाइस हैव टू जस्ट लाइक टेल मी वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू और इट or not. So just tell me in the chat whether there is any kind of any question up till now कि why we are doing UAT, और किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है तो just give me yes or no in the chat. Okay, one no is there. Okay, now
So I can see there are around 41 people, and so I will be just sharing you something. I hope you guys will be doing it in a good way. So just tell me if this particular screen is available or not. Um, Yes, sir. and Now I would request you all to just take a screenshot of this application or anything. मैं ये शेयर भी कर दूंगा फाइल आपसे, और इस पेज पे कितने इश्यूज अभी आपको दिख रहे हैं, ये जस्ट यू हैव टू लिस्ट डाउन. तो just take a screenshot of it and I'll just try to put it in your chat as well if possible. और अगर कोई बताना भी चाहे तो आई एम जस्ट रेडी. जस्ट टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इशू दे आर गेट लुकिंग ऑन इट. वो यूआई इशू भी हो सकता है, वो फंक्शनल इशू भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट इमेज है तो अभी आपको सिर्फ इसमें मोस्टली यूआई इशू ही मिलेंगे. तो आपको देख करके ही वो इशू दिख जाएगा कि हाँ ये इशू है. तो आप So बता सकते हो या alignment and font size are not correct. And sir, ओके. अलाइनमेंट एक्चुअली वो इमेज थोड़ा जूम है, इस वजह से लग रहा है. स्टिल इज गुड. अच्छा मैं बता देता हूँ. सर ये आप लोग पेज का लोगो नहीं दिख रहा. ये वाला टेक्स्ट में आई एम फीलिंग लकी आना चाहिए ना. ठीक है, ठीक है आ रहा है. मतलब अब रिजल्ट आ रहा है तो मतलब मेरे को लग रहा है आप लोग ध्यान दे रहे हो. तो एक तो जैसे अगर आप देखोगे ये टैब है, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आइकन है. तो ये जो टैब है एक्चुअली यहाँ पे ये इसे हम बोलते हैं साइड टैब. यहाँ पे हमारे पे मेटा टैब में आना चाहिए गूगल का आइकन, जो कि यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है. तो वन ऑफ द इश्यूज इज दिस. अनदर यू कैन फाइंड इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ अनलकी लिखा हुआ है, पर मोस्टली कभी अनलकी नहीं लिखा रहता है. यहाँ पे लिखा रहता है आई एम फीलिंग लकी. तो एक ये टाइपो एरर है जो हुई है. एक और आप इशू देख सकते हो, यहाँ पे गूगल की स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो आपको गलत दिखेगी, ये यहाँ पे गलत है. उसके बाद में अगर आप अनटाइटल्ड देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट सा लगा हुआ है लास्ट में, विच इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. इस ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है अनटाइटल में. वेन यू गोइंग डाउनवर्ड्स तो आप यहाँ देखो 2 बार डन लिखा हुआ है, विच इज ऑल्सो एन इशू. देर इज नो नीड ऑफ डू 2 डन्स एट अ टाइम. आफ्टर दैट इफ यू कैन, अब इसके बाद कोई मुझे इशू बताए और इसके अलावा जो मैंने अभी तो बताया. शॉपिंग की स्पेलिंग गूगल हो रखा है सर यहाँ पर, अगर ऊपर ऊपर देखें तो क्या चीज? गूगल के पास में आई लिख रखा है, बाकी सर्च सेटिंग्स है ना, उसके पास में 2 बार लगा रखी है अपने, और इस आई गूगल लिख रखा है. हाँ आई गूगल तो लाइक इट्स ओके, पर ये जो है वो एक इशू है डेफिनेटली. सर शॉपिंग की स्पेलिंग गलत है. हाँ ओके. वन और मोर. अलाइनमेंट है सर जो वेब न्यूज का जो अलाइनमेंट है वो ये न्यूज ऊपर जा रहा है हल्का सा. ये वाला आइकन. स्क्रॉल डाउन के 2 आइकन है. हाँ नीचे आएगा तो एक ही इशू है, ये है कि जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल पे देखोगे ना तो ऊपर तो एक ही आइकन है, पर नीचे यहाँ पे 2 आइकन है. तो दिस इज व्हाट वी बेसिकली डू. हमें अगर हम जब भी टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो हमारे यूआई पे हमें बस यही ध्यान रखना रहता है कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो अभी इसमें आपको एक ही बार में अराउंड अराउंड 7-8 इश्यूज अभी मिल रहे हैं. तो और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पेज पे और भी इश्यूज आपको मिल सकते हैं. कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं पे हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है आइकन, या फिर हो सकता है कुछ आइकन मिसिंग है. जैसे अगर आप देखोगे क्रॉस आइकन देखोगे तो क्रॉस आइकन में सिर्फ ये पूरी तरह से क्रॉस नहीं बना हुआ है, एक साइड का व्हाइट वाला जो पार्ट है वो अभी भी मिसिंग है. तो ये क्रॉस आइकन का एक इशू है. तो इस तरह से हमारी मेनली जो फोकसिंग होती है टेस्टिंग के अंदर, यूआई वाली सर टेस्टिंग जो सेटिंग्स होती है. की स्पेलिंग भी मिस्टेक है. हाँ सो यही मेरा मेन आपसे कंसर्न था. अभी इसी तरीके से मेरे पास एक दो और आपके लिए रहेंगी चीजें, मैं आपसे शेयर करता हूँ वो इमेजेस वगैरह, या फिर मैं आपको लिंक अगर मिलता है तो शेयर करूंगा. तो उस पर अगर आप मुझे बता सकोगे कि कितने इश्यूज हैं तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. मैं आपको एज अ टेस्टिंग के लिए देता हूँ, ताकि अगर आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर कि whether you are able to get any issues or not. For example, just take this calendar. So I will be sharing this image with you all, and then just let me know if how many issues you can get. Let me just see if I am able to. Okay, so I'll be sharing this image.
दिस इज द इमेज, इट इज अ कैलेंडर एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर कैलेंडर के अंदर क्या क्या गलतियां हैं अभी भी. सो आई गेस इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे, तो एटलीस्ट 5 to 6 issues you can easily get. So this will be your kind of a exercise that you need to do. So it will be quite helpful for you to understand how kind of issues are there, और कितनी छोटी छोटी चीजें जो फर्स्ट टाइम पर अगर आप इस पेज को देखोगे तो आपको लगेगा या इट्स वर्किंग फाइन, एक कैलेंडर ही तो है. बट अगर आप ध्यान से इसमें चेक करोगे तो इसमें आपको काफी सारी चीजें गलत भी दिखेंगी. तो दैट इज द वर्क ऑफ अ सेट. जो टेस्टर होता है वो और कुछ नहीं होकर के एक यूजर होता है, एक स्टैंडर्ड यूजर, या फिर एक कह सकते हो आपकी एक स्पेशल यूजर होता है टेस्टर, जो वो सारी चीजें भी देखता है जो नॉर्मल एक यूजर इग्नोर कर सकता है. So that is what is the main concept of performing testing and verifying what are the major scenarios to perform. Okay, what happened? So I think this will be fine for today. You have just studied about the levels of testing. So basically 4 लेवल हैं. पहला यूनिट है जिसे हमें नहीं करना, वो डेवलपर करेगा. सेकंड जो लेवल आता है वो आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम एक के बाद एक 2 या 3 या 4 मॉड्यूल्स को ऐड करके चेक करेंगे. और उसके बाद में हमारे पास आता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के बाद में सिस्टम सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हम पूरी एप्लीकेशन को चेक करते हैं. और फाइनली हमारे पास में यूएटी आता है. So that will be that will be good for today itself, and I will be sharing that particular image जो मैंने आपको ये कैलेंडर की बताई है. So just आप इसमें कुछ मत करना, इस इमेज को लेकर के इसमें आप अपने अपने इश्यूज या जितने भी इश्यूज आपको इसमें दिखते हैं वो लिख लेना, और लिख करके मैं आपको मेल आईडी दूंगा, उस पर आप शेयर करना. एंड देन आई विल टेल यू हाउ मेनी इश्यूज यू हैव फाउंड, और कितने कितने इश्यूज में आपके सही हैं कितने गलत हैं. And also very there was kind of very good students today, and सबने काफी सारे अपने इनपुट्स दिए हैं. So we'll be doing this kind of exercises more. अभी तो हम images वगैरह चेक कर रहे हैं, but in future we will be working on the some of the applications also. So हम आपको application provide करेंगे, you need to find issues, कैसे टेस्ट केसेस बनाने हैं, बाकी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे आगे वाले applications में आती हैं. So okay, thank you guys. Have a nice day, and we'll meet you tomorrow. We'll continue. Thank you, sir. Nice session, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. Have a nice day. Thank you so much, sir, for your time. Thank you all. सर मैं आपसे वो इमेज शेयर कर दूंगा, आप इन स्टूडेंट्स से शेयर करना. जी सर. है ना, और फिर इनसे आप जो भी फीडबैक रहेगा आप ले लेना. ओके सर. और आपकी सर पीपीटी हो वो भी मुझे मेल पे कर देना चाहिए. हाँ हाँ, मैं आपको पीपीटीज भी आज शेयर कर दूंगा सारी. ओके सर. ओके सर. ओके, थैंक यू. ओके.